Praise the Lord. I welcome you all for this service, Sunday service, and let us all give thanks to the Lord that He has given us this opportunity to come into His presence and praise Him, and also that He has given us this new day to worship Him and be thankful and show our gratitude towards Him for all the well being and all the good things that He has done in our life. Let us pray before we get into the service. O Heavenly Father, Lord Jesus, I thank you, Lord Jesus, for all the things that you have done in our life, Lord. O Lord Jesus, thank you, Lord Jesus, for blessing us, Lord Jesus, abundantly, Lord Jesus. O Lord, you only help us, Lord Jesus, that whatever service we do, Lord Jesus, it might be an fragrant incense, Lord Jesus, reaching towards your altar, Lord Jesus. O Lord Jesus, you only accept our service and worship and praise that we offer you, Lord Jesus, and be amongst us, Lord Jesus. In your precious name I pray. Amen. As this verse says, I will praise the name of God with a song and will magnify Him with thanksgiving. Let us all give Him thanks and with gratitude in our heart. Let us sing this song that says, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा. We were not worthy. हम योग्य नहीं थे उसके प्यार के लिए, उसके कुर्बानी के लिए, पर उसने हमें योग्य समझा. उसने अपना लहू बहा कर हमें अपने पापों से शुद्ध किया है. आइए हम ये गीत गाएं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा. उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा. उपकार
कोटि स्तुति धन्यवाद। जैसे हमने अभी गाया है, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही है भरोसा मेरा। हमारा भरोसा उस पे होना चाहिए और किसी और पे नहीं, मनुष्य पे नहीं, पर सिर्फ अपने खुदा यीशु पे होना चाहिए। हमें उनकी सेवा पूरी मन से पूरे दिल से करना है। हम योग्य नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपनी कुर्बानी दी हमें उसे याद रखना है। हमें उसके लिए उन्हें हर वक्त धन्यवाद करना है। जहाँ पे भी हम हैं, जहाँ पे भी हम खड़े हैं, कुछ भी हम करते हैं, हमें उसे धन्य कहना है। आइए हम ये अगला गीत गाए, जस्ट अ क्लोजर वॉक विद दी। I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. Let us all say that we are weak, but He is strong. He is the one who can keep us from all dangers, toils and snares. Whenever we stumble upon these worldly temptations that comes our way, He is the one who can lift us up into high rock and set us over there so that we can be harmed by no one and nothing. Let us sing this next song, which says, चाहे मैं चलूँ साए मौत की तराही में से. As Psalms 23:4 says, even though I walk through the valley of shadows of death, I'll fear no evil, for thou art with me. He is with us even though we walk through the valley of shadows of death. He guides angels around us. And in Hebrew 13:5 it says, I'll never leave thee nor forsake thee. He has promised us that He'll never leave us nor forsake us. And He is the one to keep His promises. He's a promise-keeping God. And also in Isaiah 43:2 it says, even though you walk through deep waters, I'll be there. He is the one who can keep us from all the dangerous accidents, all the viruses and everything that comes our way. Let us all praise Him and let us all ask Him that He may keep us safe from all the things that we want us to. And let us sing this song, चाहे मैं चलूँ साए मौत की तराही में से, तेरा सिद्ध प्रेम मेरे डर को दूर करे. प्रभु तू न छोड़े मुझको. सचमुच में आप चाहे कोई भी परिस्थिति हो जीवन में,
आप हमें कभी नहीं छोड़ते हो प्रभु यीशु। इसलिए हम दिल की गहराई से हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आइए सभी लोग अपने घरों पर हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर समय के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिया है, कि फिर से हम यहाँ पर इकट्ठा होकर प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम धन्यवाद देने पाए, उसके आशीषों के लिए हम गिन गिन के उसको धन्यवाद देने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ये समय है हम प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह को खोलकर हम उसे धन्यवाद दें। सभी लोग हम जहाँ पे भी है अपने मुंह को हम खोलेंगे और उसके आशीषों के लिए हम उसे धन्यवाद देंगे। उसे कहेंगे प्रभु यीशु आपने हमें हफ्ते भर संभाला है, हर प्रकार की बीमारी मुसीबत संकटों से आपने हमें बचा के रखा है प्रभु यीशु मसीह। और आपका वचन कहता है चाहे माता पिता तुम्हें त्याग दे लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा लॉर्ड। आपकी उस अद्भुत आशा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीहा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद हो महान पिता परमेश्वर यीशु मसीह। फिर से एक बार आपको धन्यवाद देते हो लॉर्ड आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है, कि फिर से एक बार प्रभु हम आपके भवन में आकर आपको धन्यवाद देने पाए प्रभु, आपके नाम को हम ऊंचा उठाने पाए प्रभु। अच्छे गीतों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हो लॉर्ड। आगे का समय हम आपके हाथों में देते हैं। वो लॉर्ड जो भी वचन है प्रभु वो आपकी ओर से होने पाए प्रभु। बोलने वाले दास को तू अभिषेक करना प्रभु। जो कोई गवाही आए हैं प्रभु यीशु मसीह उससे आपकी नाम की महिमा होने पाए प्रभु यीशु मसीहा। वो लॉर्ड अगर हमें से कोई बीमार है हम उनके लिए प्रार्थना करते हो लॉर्ड, हर बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए प्रभु यीशु मसीहा। अगर हमें से कोई निराश है प्रभु सारी निराशाओं को आप दूर कर देना प्रभु यीशु मसीहा। ओ लॉर्ड बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आपका वचन कहता है प्रभु। हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु फिर से एक बार एक आशा के साथ एक उम्मीद के साथ प्रभु, क्योंकि आप ही वो राजाओं के राजा हो प्रभु, प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह केवल आप ही हो लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं आपके मधुर नाम के लिए ओ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद हो लॉर्ड। आगे का समय भी हम आपके हाथों में देते हैं, सब कुछ आपकी महिमा के लिए होने पाए प्रभु। आपने हमें अभी तक संभाला है प्रभु, बचाया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी आदर सारी महिमा आप ही को देते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीहा के नाम से मांगता हूँ लॉर्ड, आमेन जीसस। हालेलुया। आइए हम हमारे बाइबल को इस वक्त खोलेंगे और हमारे बीच में भाई जेम्स है जो आज भजन संहिता पढ़ने में हमारी मदद करेंगे। 92 भजन संहिता है। सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 92 भजन संहिता आप निकालिए और भाई जेम्स है जो पहला वचन पढ़ेंगे और दूसरा वचन और उसके बाद हम सब मिलके पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। साम 92 पढ़ेंगे, भजन संगीता 92। पहला वचन मैं पढ़ता हूँ, दूसरा वचन आप मेरे पीछे पढ़ सकते हैं। यहोवा को धन्य कहना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। दस सार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। वर्स 7 कि दुष्ट जो घास की नाई फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नाश हो जाए। क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नाश होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। ग्यारह वचन और मैं अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल मेरे विरुद्ध उठते हैं सुनकर संतुष्ट होता है। हे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फले। 15 वचन साथ में पढ़ेंगे। जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सीधा सिद्ध है, वो मेरा चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। आमीन। वचन के जरिए प्रभु यीशु मसीह हम सभी को आशीष दे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इस वक्त गवाही का समय है। हमारे बीच में आज एलिशा और अशेर है जो अपनी गवाही को देंगे। तो मैं पहले रिक्वेस्ट करता हूँ अशेर से कि वो अपनी गवाही दे और उसके बाद एलिशा है जो अपनी गवाही को देंगे। I thank Jesus for this day he has given us and taken care of us.
He is the same unchanging Jesus, unchanging Jesus, unchanging Jesus. He is the same unchanging Jesus, now and through eternity. Hallelujah, 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 hallelujah. Psalms 111, 1, 2, and 3. Praise ye the Lord. I will praise the Lord with my whole heart in the assembly of the upright and in the congregation. The works of the Lord are great, sought out of all them that have pleasure therein. His work is honorable and glorious, and his righteousness endureth forever. Amen. थैंक यू। अब एलिशा है जो अपनी गवाही को देंगे। मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे संभाला और सुरक्षित रखा। आज तक मुझे मेरे फैमिली को कुछ होने नहीं दिया और मैं धीरे से प्रे करता हूँ कि मेरे फैमिली और इस दुनिया को बचाए रखे। आमीन। मारा था उसको, पीटा था उसको, क्या था मसीह का गुनाह, क्या था मसीह का गुनाह, मारा था उसको, पीटा था उसको। आमीन। प्रभु यीशु मसीह दोनों बच्चों को आशीष दे और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पढ़ाई लिखाई में और हर चीज़ में बुद्धि ज्ञान समझ में वो आगे बढ़ाए। हमें बच्चों के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले समय में इन सभी बच्चों को अद्भुत तरीके से उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करे। आइए हम अब मुख्य संदेश में हम जाएंगे। आज हमारे बीच में हमारे पासबान पास्टर जॉन अमन्ना है जो बहुत ऑलमोस्ट 6-7 महीने से गांव में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उन्हें सही सलामत फिर से बॉम्बे में लेकर आया है। और आज का जो संदेश है, आज हमारे बीच में पास्टर जॉन है जो हमें देंगे, तो आगे का समय मैं उनको देना चाहता हूं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो संदेश में हमारी अगुवाई करें और अंतिम प्रार्थना और आशीर्वाद के साथ आज की मीटिंग को वो समाप्त करेंगे। हालेलुया। थैंक यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज की कुछ समय हम लोग वचन के अनुसार जाएंगे। इससे पहले प्रार्थना में हम इकट्ठा होंगे। आइए हम सब अपने आंखें बंद करके सर झुका कर अपने आप को यीशु में सौंप देंगे। खुदावन यीशु मसीह, आज की सुबह का समय आपको धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु जी। आज के समय प्रभु जी स्तुति के बेट के साथ प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपका चरणों में आया प्रभु जी। ऐसे भजन संगीत के द्वारा आपने बातें किया प्रभु जी। यीशु मसीह विशेष करके बच्चे लोग को गवाही आयाशेर और एलिशा ने प्रभु जी, यीशु मसीह दुनिया की यात्रा में ये बच्चे प्रभु जी, ये आपकी बच्चे प्रभु जी, आपकी गवाही के लिए प्रभु जी ये बच्चे ने खड़ा हुआ प्रभु जी। यीशु मसीह आपको धन्यवाद करता हूँ। विशेषकर आज के समय प्रभु जी, कुछ देर वचन में आने से पहले प्रभु जी हम सब अपने आप को आपका हाथ में सौंप देते यीशु मसीह। जो भी ऑनलाइन का द्वारा प्रभु जी ये मुझे ना देख सके प्रभु जी, आपको देखे प्रभु जी, और मेरा ओटो से निकलने वाला वचन नहीं प्रभु जी, वो आपका शब्द बनकर प्रभु जी, आपका वचन होकर प्रभु जी हर एक का दिल में बातें करे प्रभु जी, क्योंकि समय निकट है प्रभु जी, आप दरवाजे में है प्रभु जी। यीशु मसीह जानकर हम सब आज के वचन के द्वारा और भी पवित्रता से पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए आप मदद करें यीशु मसीह। सब कुछ मैं आपका आत्मा सौंप देता है। मेरा ज्ञान बुद्धि शक्ति कुछ नहीं चाहिए प्रभु यीशु मसीह, आपका आत्मा से बढ़कर आप ही बातें कीजिए। आप ही का नाम का महिमा हो यीशु मसीह। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस समय यीशु मसीह ने, जैसे कि रमित ने कहा, 6.5 महीने बाद बॉम्बे लौट आए हम लोग, और 6.5 महीने में यीशु मसीह ने जो उनकी द्वारा जो काम होने का था वो सब करवा के मेरा फैमिली के साथ मुझे बॉम्बे शहर में लेके आया। आने का समय सही सलामत ने यीशु मसीह लेके आया। आने का बाद भी जो हमारे घर घर में जाके विज़िट करना परमेश्वर ने मौका दिया है,
विशेष करके 6.5 महीने में गांव में यीशु मसीह ने जो कलीसिया बनाने के लिए जो परमेश्वर ने मदद किया और परमेश्वर ने बांध के दिया, मैं कलीसिया को, यीशु मसीह को लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। आज की ये समय कुछ देर हम वचन में जाएंगे, क्योंकि आज ये समय ऐसा है लोगों के अंदर शांति नहीं है, लोगों के अंदर कन्नड़ में कह सकता है समाधान इल्लवे इल्ला। ये शांति, ये पीस के लिए, समाधान के लिए आज के दिन लोग तड़प रहा है। भले हाथ में पैसा है, सब कुछ है, मगर पीस नहीं है, शांति नहीं है। लोग वो शांति के लिए क्या क्या करना चाहते हैं आज के दिन में, वो कहीं भी जाने के लिए तैयार है, कितना भी खर्चे करने के लिए तैयार है, मगर वो शांति उन्हें मालूम नहीं है, ये दुनिया वो शांति नहीं दे सकता है। वो एक ही जो परमेश्वर दे सकता है, जो विदाउट मनी, खाली प्रेयर के साथ हम यीशु मसीह में आने के समय, उसका नाम पे विश्वास करने के समय, वो शांति हमें और आपको मिल सकता है। इसके लिए वचन में हम कुछ देर वचन के अनुसार आएंगे। जो यूहन्ना का किताब, उसमें 14 अध्याय, उसमें 27 वचन हम कुछ देर पढ़ेंगे। गॉस्पल जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 27। मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। एक सुंदर सा वचन आज के सुबह के समय परमेश्वर ने हम सबको दिया है। मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, देऊंगा करके नहीं लिया, दिया जाता है। केवल हमें उसे प्राप्त करना है। यीशु मसीह ने उस शांति देने के लिए, वो शांति का राजा, जैसा एशाया का किताब 9:6 में लिखा है, वो ऑलमाइटी गॉड, वो शांति का राजा है, वो अनंत काल के पिता है। वो हमें और आपको इस दुनिया में शांति देने के लिए मानव रूप धारण करके आया है और हमें वो शांति वो देकर गया है। आज हम उस शांति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लोग शांति के जो प्यासा है, मेरे प्यारे लोगों का अंदर शांति नहीं है। शांति नाम रखने वाला भी किसी स्त्री का नाम शांति है, मगर उसको भी शांति नहीं है। माँ बाप ने शांति नाम रखा है, मगर उसके अंदर शांति नहीं है। आज वो शांति हमें और आपको कहाँ मिलता है? वो यीशु का पास मिलता है। इसके लिए यूहन्ना का किताब में यीशु ने बहुत स्पष्ट रीति से लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें देता हूँ, मेरा शांति मैं तुझे देता हूँ। क्योंकि वो शांति का राजा है, शांति का पिता है। वो अगर शांति देंगे इस दुनिया का, उसके बिना कोई हमें शांति नहीं दे सकता है, या उससे बिना हम कोई जगह में जाकर शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। केवल हम यीशु के कदमों में आने का समय, हम अपने आप को यीशु में सौंपने का समय, यीशु मसीह हमें और आपको शांति दे सकता है। वो शांति जैसा संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। दो रीति का शांति है। एक संसार हमें शांति देता है, वो अलग है, और परमेश्वर से जो शांति आता है वो अलग है। जो संसार जो शांति हमें और आपको देता है वो कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए, मगर यीशु मसीह जो शांति देता है वो अनंत काल तक वो देने वाला खुदा है। और संसार का शांति पाने के लिए हमें संसार की जो इस दुनिया को ओर जाकर हम जो हासिल करने को देखता है, वो शांति वो कुछ देर हमारे और आपके ज़िंदगी में रह सकता है। मगर प्यारे लोगों, दुनिया का शांति मिट जाएंगे, मगर यीशु मसीह जो शांति देता है वो कभी नहीं मिटता है, वो कभी नहीं हमें चोट कर नहीं जाएंगे। वो शांति प्राप्त करने के लिए इस दुनिया का यात्रा में हमें यीशु के पीछे हो लेना चाहिए। क्योंकि यीशु ने इधर इंग्लिश में भी बहुत अच्छे से लिखा है, पीस आई लिव विद यू, माई पीस आई गिव अनटू यू, नॉट एज द वर्ल्ड गिवeth, गिव आई unto you, let not your heart be troubled, neither let it afraid। देखो बहुत अच्छे से
I live with you, peace I live with you, my peace I give unto you. वो जो शांति, वो जो पीस जो यीशु से है, वो प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। इस शांति के बारे में यीशु मसीह इस दुनिया में रहने का समय पहला जो चेला लोग यहाँ बताया, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपने शांति मैं तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता वैसा नहीं है। इस दुनिया का यात्रा में आज कितना सारे लोग अशांति में है, अशांति 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 अशांति, उसके पास सब कुछ है मगर शांति नहीं है। परिवार में सब कुछ है, परिवार में शांति नहीं है, बच्चे में शांति नहीं है, माँ बाप बच्चे में परेशान है, हस्बैंड वाइफ में परेशान है, वाइफ हस्बैंड में परेशान है। ये क्यों परेशान ऐसा होता है? क्योंकि अशांति क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह वहाँ नहीं है। जब यीशु मसीह हमारे और आपका परिवार में है, यीशु मसीह हमारे और आपका घर में है, जो वो शांति का राजा हमें और आपको शांति दे सकता है। और यीशु को छोड़कर हम उस शांति हम कभी नहीं पा सकेंगे। वो शांति पाने के लिए हमें यीशु का पास आना जरूरी है। और जब भी मैं कहा ये दुनिया का शांति हमें थोड़ी देर तक, पैसा हमें शांति नहीं दे सकता है, तंदुरुस्त हमें शांति नहीं दे सकता है। हमारे अंदर जो कितना भी सब कुछ हो, वो एक डर है, जो डर आता है। अभी जो लॉकडाउन में कितने लोग मौत का डर में है, अभी भी कोई लोग घर से बाहर भी नहीं आता है। वो डर क्या हो जाता है? अशांति लाता है। शांति वो डर को दूर कर देता है। आज हमें और आपको, हम और आप कौन सा डर के अंदर हम अशांति में है? वो डर परमेश्वर निकल सकता है जब हम परमेश्वर का चरण होता है, क्योंकि वो परमेश्वर हमें और आपको शांति देने के लिए तैयार है। वो ऑलरेडी दिया चुका है, मगर हमें उनसे लेना जरूरी है। हम नहीं लेना चाहता है। इस दुनिया से और से हम शांति लेना चाहता है। हम शांति के लिए कहाँ कहाँ जगह में जाता है। कुछ छुट्टी होने का समय हम कुछ गेट टुगेदर बनाएंगे, कुछ दिन हमें मन ये करेंगे करके हम जाता है, मगर एक दिन दूसरे दिन वही हम अपने इसमें दुनिया में पड़ा रहता है। मगर यीशु ने यहाँ स्पष्ट रीति से कहा है, जो संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। संसार का शांति हमें और आपको नहीं चाहिए। जो यीशु मसीह देता है वो हमेशा उनका शांति है, वो शांति का। क्योंकि यीशु मसीह यहाँ हम देखते हैं, यूहन्ना का किताब में हम देखने का समय पहले अपने उनको कहा, और दूसरा यूहन्ना 20 अध्याय में हम देखने का समय, यूहन्ना 20 अध्याय में हम देखने का समय उसमें 19 वचन में यीशु मसीह अपने जो सूलीब पर अपने जान देने का बाद वापस 40 दिन इस दुनिया में रहने का समय अपने चेलों को मिलकर ये कहता है, 19 अध्याय उसमें आखिरी वचन ये लिखता है, तुम्हें शांति मिले। चेलों लोग उसमें 20 अध्याय 19 वचन पहले लिखा है, जिस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था और सत्य के समय, संध्या की समय, जब वहाँ की द्वार जहाँ चेले थे और यहूदियों को डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यीशु इस दुनिया का यात्रा में अपने महिमा में जाने से पहला वापस अपने चेलों को 40 दिन उनका संग रहकर उनको वो शांति दिलाकर और उनको उस डर से बाहर निकलने के लिए, ये वचन के अनुसार उनको जो स्थिर करने के लिए उनको उनके साथ मिलने के लिए आता थे। और उसी समय संध्या के समय दूसरे दिन सप्ताह के जो पहला दिन उन्होंने उस चेलों को जो यहूदी से डर कर घर का दरवाजा बंद करके अंदर पड़े रहते थे, और यीशु मसीह ने उनका राका कहा, तुम्हें शांति मिले। ये अध्याय में 3 बार यीशु ने तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले कहा है। 19 वचन में और उसके बाद में 21 वचन में यीशु ने फिर से उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसी मैं तुम्हें भेजता हूँ, तुम्हें शांति मिले।
और वापस 26 अध्याय में ये लिखा है, 8 दिन के बाद फिर यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। यीशु मसीह अपने चेलों को इस दुनिया का कोने कोने में भेजने से पहले उनको उस शांति से जो बढ़कर भेजने का था, जो शांति यीशु देता है, मैं मेरा शांति तुझे देता हूँ करके हमने जब भी पढ़ा है, और वही शांति वो यीशु ने अपने चेलों को दिया, तुम्हें शांति मिले। और उसने यह कहकर, क्योंकि वो शांति वो और लोगों को देखकर, और लोगों को चेला बनाकर उनको ये शांति दिला सके, उनको ये शांति दिला सके, इसलिए यीशु मसीह ने उनको कहा तुम्हें शांति मिले। क्या आज हम क्रिश्चियन कहने वाले ये शांति में है? एक क्रिश्चियन कहने वाला हम, आज वचन सुनने वाले हम लोग क्या शांति में है, या दरवाजा बंद करके घर के अंदर बैठे बाहर नहीं जाता है? मेरे प्यारे लोगों, उस समय चेला लोग भी डर कर, मौत से डर कर, क्योंकि उस समय वो परिस्थिति था, जो भी यीशु का वचन ये कर रहा है उनको बंदीखाने में डालता था। और राजा ने याकूब को उन्होंने मार दिया है, और लोगों को अच्छा लगा करके पतरस को रखकर बंदीखाने में पतरस को बंदीखान करके उन्होंने जेल में डाल दिया पतरस को। और दूसरे दिन पतरस का जो सर कटने का था, आज रात को पतरस परमेश्वर को जेल के अंदर से धन्यवाद स्तुति का भेंट चढ़ा रहे। मेरा प्यारे लोगों, कल का दिन उनका मौत का दिन है, उनका सर कटवाने का दिन है, राजा का हुक्म है, रोमन सरकार का हुक्म था, मगर पतरस मौत को नहीं डरा। वो जो यीशु मसीह ने जो तुम्हें शांति मिला करके चेलों को कहा, वो जो डर पतरस के अंदर था, 3 बार यीशु को इनकार किया। और जब यीशु मसीह ने उस 40 दिन के अंदर जब उनको 3 बार उनके संग मिला और उनको कहा शांति मिले, वो शांति का राजा, वो पवित्र आत्मा जब उनके अंदर आया है और वो डर उनसे निकल गया, और वो पतरस उधर वचन प्रचार किया है। क्योंकि जो डर था, 3 बार इनकार किया, और यीशु मसीह ने उनको गले लगाया, उनको डर को निकाल डाला, उनको शांति दिया, और वो शांति का वो दूत बनकर उन्होंने वचन प्रचार करते हुए इस दुनिया का यात्रा में उन्होंने बाहर निकला। और वही पतरस जेल में था। दूसरे दिन, उसी दिन उनका रात आखिरी रात था, मगर क्या हुआ, परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, प्रार्थना करते हुए, स्तुति का भेंट चढ़ाते हुए रहने के समय पूरा बंदीखाना सब कुछ तोड़ दिया गया और पतरस को आज़ाद किया है। मेरे प्यारे लोगों, उनके लिए कितना लोग स्त्रियां प्रार्थना करता था, और पतरस को परमेश्वर ने आज़ाद करके जेल से उनको बाहर लाके छोड़ दिया। आज हमें और आपको वो ज़रूरत है, वो प्रार्थना का ज़रूरत है। हमें और आपको उस प्रार्थना का साथ वो शांति को प्राप्त करते हुए, जितने सारे लोग आज के दिन उस डर में, उस कोरोना वायरस का डर में घर के अंदर है, बाहर नहीं निकल रहे, कितना लोग इस दुनिया का यात्रा छोड़ दिया है, कितना घर में शांति नहीं है, अशांति, दुख में, परेशानी में। मेरे प्यारे लोगों, हम और आप परेशानी में ना हो, हम और आप अशांति में ना हो। जो शांति का राजा हमें और आपको जो शांति दिया है, हमें और आपको माँ का गर्भ से चुना है, हमें और आपको इस्तेमाल कर रहा है, हमें और आपको जो टैलेंट दिया है, हमें वो शांति को ले चलना है। परसों के दिन एक सिस्टर ने एक गवाही दिया है। उनका बिल्डिंग का घर का बाजू का जो सिस्टर है, उनको आके ये कहा, आप सुबह 5 बजे उठ के प्रार्थना करते हैं ना, इसके लिए हमारा बिल्डिंग में कोरोना आया ही नहीं है। वो अन्य जाति के स्त्री थे, मगर उनको जो जानता था, ये जो सिस्टर सुबह उठ के 5 बजे यीशु से प्रार्थना करता है, और इसके लिए हमारा बिल्डिंग में कोरोना नहीं आया। देखो, ये सिस्टर उसको जाके नहीं बोला मैं यीशु से प्रार्थना करता हूँ इसके लिए कोरोना नहीं आया करके नहीं बोला। अन्य जाति के लोग ये सिस्टर का प्रार्थना सुनकर, ये सिस्टर का विश्वास को देखकर कहा, तुम्हारा प्रार्थना सुबह का आज हमें कोरोना नहीं हुआ। क्योंकि हमें हमारा प्रार्थना, हमारा जो क्रिया का साथ
आज की जो समय है, यीशु का वचन को शांति के द्वारा प्रचार करना है। इसके लिए यीशु ने जैसा चेलों को इस्तेमाल किया, चेलों ने ऐसे गली गली में जाके उन्होंने प्रचार किया है। आज हमें भी गलीला में पहले स्टार्ट किया, आज हमें गली गली में प्रचार करना है। हमें वो शांति को प्रचार करना है, हमें शांति को और लोग कहना है, क्योंकि जो शांति से आज दूर हो चुका है, असंभव है, अभी हो ही नहीं सकता है, मेरा परेशानी दूर हो ही नहीं सकता है, मेरा कष्ट और संकट मेरे बाहर आ ही नहीं सकता है, मेरे को शांति कोई नहीं दे सकता है, मेरा बस सब कुछ है, पैसा धन दौलत सब है। कल का दिन मैं एक ब्रदर को मिला, उन्होंने भी यही कहा, बाइबल को थोड़ा बहुत जानता है, कैथलिक परिवार से आया है। उन्होंने ये कहा, ब्रदर सब कुछ है, शांति नहीं है, वेल सेटल्ड है, शांति नहीं है। और प्रार्थना करने के समय उन्होंने रोना चालू किया। मेरे प्यारे लोगों, एक शांति के लिए हमें वहाँ यहाँ यात्रा में जाना जरूरत नहीं है। हमारे और आपका घर में ये शांति का जो जिंदा कलम हमारे और आपका घर में है। जब हम इस कलम को लेकर पढ़कर हम दंडवात करते हुए प्रार्थना करने के समय वो यीशु मसीह वो पवित्र आत्मा को हमारे अंदर आपके अंदर डालेंगे, वो शांति हमें और आपको मिलेंगे। मगर हमें अपने मन को यीशु की ओर लाना है, हमें और हम अपने मन को यीशु की ओर लाना है। इसके लिए जो 2 क्रॉनिकल उसमें 16 अध्याय 9 वचन में क्या लिखा है देखो। दूसरा ಇತಿಹಾಸ 16 ಅಧ್ಯಾಯ 9 ವಚನ, 2ನೇ ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ वचन। दूसरा इतिहास 16 उसमें 9 में एक वचन ऐसा लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा का दृष्टि सारे पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है, पूरा सारे सृष्टि पर हर एक लोगों को पर परमेश्वर यीशु मसीह का दृष्टि फिरती रहती है। वो देखते रहते हैं, मेरा बेटा मेरा बेटी कभी मेरे पास आएंगे, मैं ऑलरेडी शांति दे चुका है, मगर वो लेना नहीं चाहता है, वो मेरे पास आना नहीं चाहता है, वो अपना काम धंधे में बिजी है। यीशु मसीह हमें और आपको बुला रहा अभी भी, हमें उसका पास आने के लिए। इसके लिए जो 2 क्रॉनिकल में बहुत अच्छे से लिखा है, यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। हमारा मन यीशु की ओर निष्कपट होना चाहिए, जब भी वो दृष्टि हम देख सकता है, हम ताकि उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। परमेश्वर यीशु मसीह आज के समय वो अपने मदद करना चाहता है, वो सहायता करना चाहता है, वो तैयार है, सहायता करने के लिए तैयार है, मदद करने के लिए तैयार है, शांति देने के लिए तैयार है। मगर हम वचन बताते हैं, हम अपने मन उसकी ओर निष्कपट से रहना चाहिए। हमारे मन के अंदर जो कपट है उसको निकल कर हम निष्कपट होकर जब परमेश्वर के चरणों में आता है, परमेश्वर हमारे और आपका प्रार्थना को उत्तर देंगे, हमें और आपको शांति देंगे। जब मन में निष्कपट होता है ना, वो किसको दिखता नहीं है, सामने ऐसा लगता है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, हंसकर हम बहुत खुशी में रहते हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। जैसा हाथ निकल गया मुंह ऐसा रहेगा। मेरे प्यारे लोगों, ये नहीं है, निष्कपट मन होना चाहिए, निष्कपट, अंदर कुछ भी एक दाग भी नहीं रहना चाहिए। वो कहाँ से हो सकता है? हम यीशु मसीह में आने के समय, क्योंकि मनुष्य में कभी भी गलती होता ही है। ऐसा नहीं कि हमसे गलती नहीं होता है, पास्टर लोग से पहले गलती होता है। मगर हमें हर दिन हर समय परमेश्वर का चरण में आकर सुबह शाम, यीशु मसीह हम कहाँ आपसे दूर गया है, कहाँ कुछ गलती हुआ है, परमेश्वर आपकी वचन द्वारा दिखाइए। परमेश्वर जब भी प्रार्थना करने के समय परमेश्वर हमें और आपको दिखाता है हम क्या कर सकता है, हम कहाँ गलती किया है, हम कहाँ अपने राह भटक गया है। जब भी हम उसके लिए क्षमा मांगते हुए यीशु मसीह से
प्रार्थना करते हुए, दंडवत करते हुए प्रार्थना में बैठने के समय यीशु मसीह हमें और आपको शांति देंगे। मेरे प्यारे लोगों, वो शांति केवल यीशु में दे सकता है, यीशु में मिल सकता है। हमें केवल उनके चरणों में आकर प्रार्थना करना केवल बाकी है। उसकी दृष्टि हमेशा अपनों पर रहता है। कोई नहीं कह सकते कि मुझे कोई नहीं देखने वाला है, मुझे कोई मदद नहीं करने वाला है। एक बार देखो, हमारे लिए, आपके लिए उस सूलीब पर एक आखिरी बूंद तक खून का बहा है। क्या वो यीशु मसीह हमें और आपको छोड़ सकता है? मैं तुम्हें कभी नहीं तोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। एक माँ अपने बच्चे को भूल सकते है, यदि भूल सकता है, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा करके यीशु ने कहा। बलहीन में बल देने वाला खुदा है, मैं ही करके यीशु ने कहा है। फिर आज हमें और आपको क्या तकलीफ है? क्यों तकलीफ है? हम यीशु से दूर गया है। मेरे प्यारे लोगों, यीशु से हम लोग दूर गया इसके लिए है। यीशु दिए हुए समय को हम लोग व्यर्थ ना करें, हम ना डरे। हमें वचन मिला है, जिंदा खुदा मिला है, हमें शक्ति दिया गया, हमें शांति दिया गया। वो यीशु जो नाम है, उसमें जो शक्ति है, उसमें जो सामर्थ्य है, उसमें जो शांति है, उसमें जो बीमारी चंगा हो जाता है, उसमें सब कुछ है। वो नाम छोड़कर और कोई नाम है ही नहीं है। इसके लिए वचन बताते, एवरी नी शैल बॉ, हर एक घुटना टेकेगा उस नाम पे, हर एक जबान इकरार करेगा यीशु ही खुदा है। वो नाम हमें और आपको दिया है। वो नाम में जो जय है, वो नाम में सब कुछ मिल सकता है। हमें वो नाम का जो शक्ति पाने के लिए, वो नाम का शांति पाने के लिए, हम अपने आप को जो मन फिरा कर, जो गलत किया है, पाप किया, उसके लिए जो प्रार्थना करते हुए, मन फिराते हुए, पश्चाताप करते हुए हम यीशु के पास आएंगे। यीशु मसीह हमें और आपको शांति देंगे। आइए हम अपने सर झुकाकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, आज के इस समय के लिए आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। पूरा दुनिया प्रभु जी कोरोना वायरस की वजह से प्रभु जी सब अशांति में प्रभु जी, दुख में प्रभु जी, संकट में प्रभु जी, कष्ट में प्रभु जी। कितने सारे लोग प्रभु जी कोरोना वायरस के द्वारा इस दुनिया छोड़ के चले गए प्रभु जी। मगर यीशु मसीह, आपने हम सबको जीवित रखकर आज के दिन में ऑनलाइन के द्वारा आपका वचन सुनने के लिए आपने मदद किया प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु जी यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु जी ये शांति का संदेश है प्रभु जी यीशु मसीह, क्योंकि आप शांति का परमेश्वर है, खुदा है प्रभु जी। आप जो संदेश दे रहे हैं प्रभु जी, वो शांति का संदेश है प्रभु जी। आपका जो संदेश सुसमाचार सुनता है प्रभु जी, उसको शांति देने वाला आप है प्रभु जी खुदावन। आज कितने सारे लोग घर के अंदर डरवाई में है प्रभु जी यीशु मसीह, उनके अंदर वो शांति डाल दे प्रभु जी। उनको डर से बाहर निकल प्रभु जी, क्योंकि वो बाहर जाकर प्रभु जी खुशी का खबर और लोगों को कहने के लिए मदद कर प्रभु जी यीशु मसीह। जब उस समय यहूदी का डर में प्रभु जी चेहरे लोग घर के अंदर प्रभु जी दरवाजे बंद करके रहने के समय यीशु मसीह आप यीशु मसीह उनका बीच में जाकर तुम्हें शांति मिले करके कहा। वो शांति उनको दिया और वो शांति प्राप्त करते हुए, वो शांति का ताकत शक्ति प्राप्त करते हुए उन लोग दुनिया का कोने कोने जाकर वो शांति का संदेश उन्होंने प्रचार किया। यीशु मसीह, आज के दिन में भी प्रभु जी वही काम होने दे प्रभु जी। हर एक जो आपने बुलाया, आपने प्रभु जी चुना है प्रभु जी, वो चुना हुआ लोगों को प्रभु जी आप इस्तेमाल कर प्रभु जी। उसके अंदर उसका हाथ में दो धारी तलवार दे प्रभु जी, उसका और एक हाथ में आपका नाम का झंडा दे प्रभु जी यीशु मसीह। और इस दुनिया की यात्रा में इस शांति का संदेश सुसमाचार प्रभु जी वो प्रचार करते जा प्रभु जी। जिसके अंदर अशांति है, दुख है, कष्ट है, संकट है, और उसके संदेश देने के लिए हर एक को आप इस्तेमाल कर प्रभु जी। हम क्रिश्चियन कहने वालों को प्रभु जी आप इस्तेमाल कर प्रभु जी यीशु मसीह। और जो बीमारी में प्रभु जी, दुख संकट में प्रार्थना करते हुए उनको चंगा करने के लिए, आपका नाम बताने के लिए आप मदद कर प्रभु जी। और आज के ये समय यीशु मसीह अपने सीजेसी कलीसिया को, बेतेल कलीसिया का आपका हाथ में सौंप देता है। दोनों कलीसिया का हर एक परिवार को आपका हाथ में सौंप देता है। हर एक परिवार का डब्बा में आशीष डालने दे प्रभु जी यीशु मसीह। हर एक घर का चारों ओर आपका दूध को फारा कीजिए प्रभु जी। खुदावन, आपका समय निकट है प्रभु जी यीशु मसीह। चर्च में इकट्ठा होने के लिए नहीं होता है प्रभु जी, मगर आपने जो वचन में लिखा है, जिधर 2 और 3 मेरा नाम से एक मन होकर इकट्ठा होता है, उनका बीच में मैं मौजूद है यीशु मसीह। आज के जो दिन है प्रभु जी, लोग घर में इकट्ठा होकर परिवार के साथ प्रभु जी आपसे मांगने का समय यीशु मसीह, आप उनके अंदर घर में उतरा कर प्रभु जी आप उनको कह दे प्रभु जी तुम्हें शांति मिले।
यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु जी हर एक को भर दे प्रभु जी, और कहो प्रभु जी तुम्हें शांति मिले प्रभु जी। वो वचन, वो प्रभु जी शब्द सुनने के लिए हर एक का आत्मिक कान खुलने दे प्रभु जी। हर एक का मन का निष्कपट को निकाल डाल प्रभु जी। प्रभु जी कपट को निकाल के उसको निष्कपट बना दे प्रभु जी। यीशु मसीह हर एक का मन प्रभु जी निष्कपट होने दे प्रभु जी। यीशु मसीह हम अपने आप को भी आपका हाथ में सौंप देते हैं। हम सबको आप इस्तेमाल कर प्रभु जी यीशु मसीह। और दोनों कलीसिया का पास्टर लोग में आपका हाथ में सौंप देते हैं। गॉडियन पास्टर को आपका हाथ में सौंप देते हैं। शरीर में बल दे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी उसका शरीर में प्रभु जी कमजोरी है प्रभु जी। आपने कहा बलहीन में बल देने वाला खुदावन मैं ही है। यीशु मसीह आपका दास को इस्तेमाल कर प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने प्रभु जी आपका दास को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारा आत्मा को प्रभु जी वो सच्चे वचन में खड़ा करने के लिए एक दिन आपने उसको इस्तेमाल किया, आगे भी आप इस्तेमाल कर प्रभु जी यीशु मसीह। उनकी द्वारा प्रभु जी आपका नाम का शक्ति बहुत सारे लोगों को दिखाया था प्रभु जी यीशु मसीह, और भी आज के दिन फिर से होने दे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप उनको वो ताकत से भर दे प्रभु जी यीशु मसीह, वो शांति से भर दे प्रभु जी, जो दुनिया नहीं दे सकते देता है प्रभु जी, वो शांति आप दे सकते हैं, वो शांति उनके घर में होने दे प्रभु जी यीशु मसीह। ऐसे पास्टर चाकू थॉमस को भी आपका हाथ में सौंप देते हैं। हाँ प्रभु जी, उनका परिवार को भी आप आशीष से भर दे प्रभु जी। उनकी द्वारा भी प्रभु जी बहुत सारे लोग वचन को सुनकर प्रभु जी आपका बस आया प्रभु जी, और भी लेके आओ प्रभु जी यीशु मसीह। विशेष करके इस ऑनलाइन की जो ऑनलाइन के लिए जो भी मदद कर रहा है प्रभु जी यीशु मसीह, डेनिना का परिवार को, रेमित फैमिली को, रेसल को और जेम्स को परिवार को, सबको मैं आपका हाथ में सौंप देता है यीशु मसीह। आप प्रभु जी किसी न द्वारा ये सच्चा वचन प्रकट होने के लिए, प्रचार करने के लिए, गवाही के लिए, भजन संगीत के लिए आपने इस्तेमाल किया प्रभु जी। वो आशीष उनको भी दे प्रभु जी यीशु मसीह। उनको भी जो समय निकल कर आपके इस ऑनलाइन के लिए मदद कर रहे हैं, जो आपके लिए समय दिया प्रभु जी, उनके लिए लॉन्ग लाइफ देकर प्रभु जी, समय देकर उनका हर कमी घटी को आप पूरा करते हुए प्रभु जी, हम सब मिलकर प्रभु जी आपका आने के समय के लिए एक सैन्य को तैयार करें प्रभु जी, एक सेना को तैयार कर प्रभु जी। हम सबको आप इस्तेमाल कीजिए। यीशु नाज़री का नाम से मानता हो, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर अंत्य आशीष लेंगे। अभी धरती आसमान को बनाने वाला खुदावन यीशु मसीह का दया, करुणा, प्रेम हमेशा हम सब में बना रहेगा। आमीन आमीन आमीन। Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like चेंज माई हार्ट ओ गॉड, मे आई बी लाइक यू। मेरे मन को तो बदल दे प्रभु यीशु मसीह। और जैसे कि आज वचन हमने सीखा है कि पीस बी अनटू यू, आपके जीवन में, आपके परिवार में और सभी के जीवन में शांति बने रहे जब तक कि हम फिर नहीं मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच फिर से एक बार सभी को जुड़ने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे और हम फिर से अगले संडे को मिलेंगे। सो थैंक यू। आप